Assalamu alaikum, Rarib. Thank you so much for joining the session. Walaikum Assalam. Thank you so much for having me. Perfect. A lot of people know that the main reason of having this discussion is to get an idea, like how different people think. And I think we will be discussing a lot of good things because um, the main topic nowadays that we see is a big debate of Gen Zs versus millennials. How millennials are better, Gen Zs are not. Because I'm a millennial, that's why I'm saying that. But Gen Zs are also good, and you are being one of the very good profile. A lot of time when I see people who are graduating, I see a lot of people are doing media studies, bachelor's in administration, XYZ. Okay? But then I go through your profile and I see that you're doing bachelor's in English, and then you have done bachelor's in education, and now you're doing bachelor's in psychology. So there are a lot of things that I wanted to discuss, wanted to know, okay, what was the right thought process when you were doing it. And also the main reason of doing is that you're working in an incubation center, and I wanted to know, people really wanted to know how incubation center work and what are the right outcomes. So there are a lot of to discuss. So before we start the discussion, I'll be happy if you can tell about yourself, what's going in life, and then we'll start the session. Sure. Assalamu alaikum. As you have introduced me, my name is Lari Fatma, and I'm currently working as startup support executive at Aid University Business Incubation Center. As far as my educational background is concerned, as you have already discussed, I've done my bachelor's in English, and currently I'm pursuing my MPhil in linguistics, and also side by side I'm doing BEd in education. Perfect. So As far as my एक चीज मैं सॉरी टू कट यू ऑफ, एक चीज मैं जाननी है कि why bachelor's in English, ठीक है? And because sometimes we need to realize कि a lot of time people think कि यार हमें ये वाली चीज करनी चाहिए, और पाकिस्तान में जनरली ये फॉर्मूला होता है कि योर ग्रेजुएशन इज बेसिकली कि आपके बड़े कजन्स या बड़े बहन भाइयों ने क्या करा है, और आप उस पे एक तरीके से आपके कंधे पे बंदूक रखी जाती है और वो चला दी जाती है, ठीक है? आई एम अज्यूमिंग कि किसी ने और ने तो बैचलर्स इन एजुकेशन या बैचलर्स इन इंग्लिश नहीं करा आपके खानदान में, बट व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस व्हेन यू आर सिलेक्टिंग कि ठीक है, दिस इज द फील्ड दैट आई वांटेड टू डू माय बैचलर्स? Okay, so इसकी काफ़ी लंबी स्टोरी है if I may. हाँ, फॉर श्योर. So basically, I am starting with my FSC. In my FSC, I have done pre-medical. So basically, जो आप बात करें, since I am the eldest in my home, तो जिस तरह पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर फॉर एग्जांपल लड़की है तो शील बी डॉक्टर और लड़का है तो शील बी इंजीनियर, जो कि हमारे लाइक पेरेंट्स का एक माइंडसेट है. उसके अकॉर्डिंगली देन वी आई हैव कजन्स जो कि ऑलरेडी दे आर परसुइंग MBBS, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे ऊपर प्रेशर था कि यू हैव टू डू मेडिकल, यू हैव टू डू मेडिकल. सो मेरी FSC वाज इन प्री मेडिकल. देन एट टाइम जब मेरा BS सेलेक्ट करने का टाइम आया, आई वाज नॉट लाइक मैंने क्वालिफाई नहीं किया फॉर MBBS. इट्स अनदर डिबेट. उसके बाद देन आई हैव टू चूज़ कि मैंने अपना BS किस में करना है. आई हैव थ्री डिफरेंट ऑप्शंस. आई अप्लाइड फॉर बायोटेक्नोलॉजी सिंस वो मेरी फील्ड से रिलेटेड था इन लाइक बायोलॉजी. आई वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन IR जो कि लाइक मेरा अपना पैशन था. एंड देन द लास्ट ऑप्शन वाज BS इंग्लिश. एंड टू बी ऑनेस्ट मैं बचपन से ही इंग्लिश से काफ़ी भागती हूँ. आई वाज नॉट रेडी मेंटली कि मैं BS इंग्लिश करूँगी, और मेरा कोई इस तरह का ऐसा प्लान था नहीं इस पे. Then I applied in three different universities, and luckily I got in Air University Islamabad. हुआ ये इस तरह से कि क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो पुलिस के बैकग्राउंड से हैं, ही इज़ पुलिस इंस्पेक्टर. तो उन एज यू माइट नो कि थोड़ा सा उनका माइंडसेट को चेंज करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट. क्योंकि जैसे मैंने बताया कि पेरेंट्स की हमारी सोच ये होती है कि आइदर इफ़ लड़की है तो शी विल बी डॉक्टर और टीचर. तो वो थोड़ा-सा माइंडसेट चेंज करना कि आप IR की तरफ जा रहे हो, जर्नलिज़्म की तरफ जा रहे हो. अब सिंस जिस तरह मैं इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रही हूँ, इट्स लाइक यू कैन से कि सेमी कॉर्पोरेट जॉब. तो इस तरह के माइंडसेट में थोड़ा-सा कन्वर्ट करना इज़ लाइक वेरी डिफिकल्ट फॉर पेरेंट्स ना, कि वो उस माइंडसेट से निकल के यहाँ पे आ जाएँ सिंस दे हैव लाइक प्रेशर फ्रॉम द सोसाइटी एज़ वेल. तो दैट्स व्हाई मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था. आई डिड माय बैचलर्स इन इंग्लिश. परफेक्ट. और इन लाइक आई वाज इन माय फोर्थ सेमेस्टर और आई डिडंट नो कि मैं क्या कर रही हूँ. आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश टू बी ऑनेस्ट. और फोर्थ सेमेस्टर तक मेरा ये था कि बस मैं पता नहीं क्या कर रही हूँ, बस सेमेस्टर गुजर रहा है, मैं पढ़ रही हूँ एंड ऑल दैट, इस तरह की चीज़ें थी.
अच्छा, बट देन एक मैं चीज यहाँ पे पूछना चाहूंगा, जी। सॉरी टू कट यू ऑफ, कि व्हेन वी, इट्स अ वेरी लेमैन क्वेश्चन, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता हो, बट जस्ट फॉर द पीपल हु डोंट नो दैट, कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ कि भाई समवन इज डूइंग बैचलर्स इन मीडिया स्टडीज, तो उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम उर्दू पढ़ रहे होते हैं, इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, समटाइम स्टार्टिंग में हम सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उसके मेन कोर्सेज पढ़ते हैं। बैचलर्स इन इंग्लिश कर रहे हैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर उसके अंदर उर्दू तो नहीं पढ़ते होंगे। So how's the curriculum look like? Because yes, we both are from different fields, and that was the main idea, to get a knowledge कि यार different fields का क्या scope होता है, ठीक है। So when you're doing bachelor's in education, how your curriculum is look like? कि English 1, English 2, English 3 तो नहीं होता होगा। I'm pretty much sure you study Shakespeare, you study a lot of different people who have done I think poetry in different languages, but um, as you say कि you don't have any interest in doing English, ठीक है, but यस। still at the end of the day when you have done some, किसी एडमिशन ले लिया तो अब ग्रेजुएट तो होना है, ठीक है। सो how was your overall 4 years of experience के, ठीक है, 3 साल 2 साल के 2 साल में तो पता चल गया कि नहीं करनी थी, but are you good in it? Do you think in BS English is hard? What's your thought process? ओके, सो सिंस जैसा मैंने बताया कि बीएस इंग्लिश वाज नॉट माय टाइप, मतलब कि हम्म। मेरा इंग्लिश में कोई इंटरेस्ट नहीं था, तो दैट्स व्हाई फर्स्ट 2 इयर्स वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। हम्म। जहाँ तक बात की करिकुलम की एंड सब्जेक्ट्स की, तो इन द फर्स्ट 4 सेमेस्टर्स तो हमारे लाइक सब्जेक्ट्स इस तरह के होते हैं, मैथ्स, नॉट फिजिक्स, बट मैथ्स हो गया, इसी तरह फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, नॉवेल्स जिस तरह आप बात कर रहे हैं, शेक्सपियर, यस वी डू रीड शेक्सपियर। उसके अलावा डिफरेंट राइटर्स, अमेरिकन राइटर्स, ब्रिटिश राइटर्स, अफ्रीकन राइटर्स, पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स, प्री कॉलोनियल राइटर्स, इस तरह के। देन वी हैव डिफरेंट सब्जेक्ट्स जिसमें हम पाकिस्तानी राइटर्स को पढ़ते हैं, पाकिस्तानी नॉवलिस्ट को पढ़ते हैं। ओके, सो इन बीएस इंग्लिश वी बेसिकली मोस्टली डील विद थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स एंड ऑल दैट। तो उसमें हमारे पास मूवमेंट्स आ जाती हैं, फेमिनिज्म की है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, पोस्ट कॉलोनियलिज्म है, अपार्थेड है एंड ऑल दैट, ब्लैक एंड वाइट की जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और उसके ऊपर जो लिटरेचर लिखा गया किस तरह से है। देन इन द लेटर स्टेजेस ऑफ बीएस हमारे कोर्सेज थोड़े से शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स लिंग्विस्टिक्स, सिंस बीएस इंग्लिश में आपको लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर के दोनों लाइक कंबाइंड सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। सो हम्म। लिटरेचर में तो आप नॉवेल्स, पोएट्री, मॉडर्न पोएट्री, ड्रामा एंड ऑल दैट वो सब पढ़ लेते हैं। इन द लिंग्विस्टिक पार्ट आप फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, दीज आर द ब्रांचेस जो कि आप इनिशियली टच करती हैं इन बी एस इंग्लिश। एंड सिंस आई एम करंटली परसुइंग इन माई एम फिल इन लिंग्विस्टिक्स, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, माई नीश इज़ इन सोशल लिंग्विस्टिक्स। तो जो बात आपने की कि फर्स्ट 2 ईयर्स तो मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट थे, क्योंकि आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश। लास्ट 2 ईयर्स में सिंस हाफ डिग्री हो चुकी थी, ना डिग्री में छोड़ सकती थी, अब ना आगे जा सकती हूँ ना पीछे जा सकती हूँ, इट वॉज लाइक अ मिड हम्म। सिचुएशन। देन आई कंसल्टेड विद माई टीचर्स। मैंने उनको बताया कि मैम ये इशू आ रहा है, सर ये इशू आ रहा है, आई कांट फोकस, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं किस तरह से करूँ। सिंस मेरा ड्रामा, पोएट्री, नॉवेल्स इस तरफ कोई इतना ख़ास रुझान नहीं था, दैट्स वाई थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। हम्म। But in later stages, I'm telling you, social linguistics was my niche. Then I got interested how language works in our brain, बेसिकली, एंड लैंग्वेज का सोसाइटी से क्या लिंकेज है। और जब आप सोशल लिंग्विस्टिक्स में आते हो तो देन यू हैव साइकोलॉजी एज वेल, आप साइकोलॉजी को भी इंटीग्रेट करते हैं, तो वो थोड़ा सा काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती फील्ड। आप उसमें लोगों को लाइक यू कैन से कि एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी सोसाइटी को एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो चीज़ काफ़ी थोड़ा यू कैन से कि इंटरेस्टिंग हो गई थी मेरे लिए बाय द एंड ऑफ द माई डिग्री। So मतलब after 2 years you decided कि ठीक है, this is something that you wanna do, तो मुझे ख्याल से doing masters in psychology is a good decision, यस। वो तो आपको पता था कि यार वो तो आप कर सकती हैं, ठीक है। Moving forward, as far as your experience, I see that you have done multiple things. You have been a writer, you have been a designer, you're working for business development, ठीक है। So when we discuss about incubation thing, जो अभी आप कह रहे हो, let's take it on the side. But what do you think? Why not sticking to one thing? इसमें कुछ पॉइंटर्स हैं जो मेरे दिमाग में, कि एक तो ये चीज़ है कि अब आप इसको पॉजिटिव इस तरीके से देख सकते हो कि यार आई वांटेड टू एक्सप्लोर डिफरेंट साइड्स, ठीक है।
this is the main Yes. thing that I'm thinking people usually think at your age. Not everyone is like that, ठीक है. Sometimes people think यार आप एक चीज करो, आप उसके अंदर थोड़ा सा स्किलफुल हो, बेशक वो 6 महीने 7 महीने 1 साल है, ठीक है. बट what do you think, what are the outcomes when it comes to के हर अलग अलग फील्ड में थोड़ा थोड़ा टाइम लगा के आपको फायदा होता है, या ये सही चीज नहीं है क्योंकि आप वो चीज कर चुके हो ना, एंड यू आर डूइंग समथिंग वेरी डिफरेंटली, जो कि जो आपने एक्सपीरियंस में करा वो बिल्कुल अलग था, और जो अभी आप कर रहे हो बिल्कुल अलग है. डू यू थिंक डूइंग मल्टीपल थिंग्स हेल्प यू इन सर्टेन वे? सही तरीका, सही चीज थी, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? यस, आई थिंक सो, बिकॉज एक तो वन ऑफ द थिंग्स जो कि आपकी इम्प्रूव होती है, इट्स स्किल्स. हम्म. Firstly, I will start from my freelancing era. So I basically started my freelancing when I was in my BS. I was in my second semester of BS. तो हुआ कुछ इस तरह से कि सिंस इंग्लिश में आपको राइटिंग और इसके ऊपर काफ़ी फोकस करने को बोलते हैं, और जब मैं अपनी लाइक कोर्स वर्क को देखती थी और मैं अपनी राइटिंग को देखती थी और जब मैं अपने साथ वालों को देखती थी कि यार दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब एट इंग्लिश एंड आई एम नॉट, तो उस वजह से आई थॉट कि आई हैव टू डू समथिंग जिसकी वजह से मैं अपनी वोकेबलरी इंक्रीज कर सकूँ. लाइक आपके अंदर एक वैसी ग्रट आती है कि यू हैव टू डू समथिंग, कि आप अपनी एटलीस्ट जो चीज़ आप कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट करो. सो आई स्टार्टेड विद माई फ्रीलांसिंग करियर. आई हैव डन माई फ्रीलांसिंग फॉर ऑलमोस्ट 5 years. उसमें हुआ ये कि आई वॉज वर्किंग विद डिफरेंट क्लाइंट्स, जो कि कुछ इंटरनेशनली थे कुछ नेशनली थे. उसमें था कि मेरे जो मोरलेस जो हमारे लाइक यू कैन से कि असाइनमेंट्स थी या जो भी इस तरह की चीज़ें थी, दे वर मोस्टली फ्रॉम इंग्लिश, सोशल लिंग्विस्टिक्स और फ्रॉम साइकोलॉजी. तो उससे हुआ ये कि वंस आई वाज इंडल्ज्ड इन डूइंग एनी असाइनमेंट, तो उसमें मेरा अपना नॉलेज भी इंक्रीज होता था, तो मैं उसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट हो गई. हम्म. देन फ्रीलांसिंग का फ़ायदा ये हुआ कि मेरी स्किल्स काफ़ी अच्छी होगी, राइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी होगी, रिसर्च स्किल्स काफ़ी अच्छी होगी, जो कि आपको लेटर स्टेजेस में काफ़ी हेल्प आउट करती हैं. फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम डूइंग माय एमफिल इन लिंग्विस्टिक्स, तो हम्म. मेरे लिए रिसर्च करना इतना मुश्किल नहीं था, जो कि एज़ कम्पेयर टू एक ऐसा बीएस का स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएट हुआ, ही हैज़ नो एक्सपीरियंस इन रिसर्च और वो डायरेक्टली एमफिल में चला जाए. हम्म. एमफिल में जाके रिसर्च करना एंड उसके लिए थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू एंड ऑल दैट, वो चीज़ें थोड़ा कंपाइल करना इज़ वेरी डिफिकल्ट इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड. आपको समझ नहीं आती कि आपने क्या करना है एंड ऑल दैट. तो सिंस आई हैड द एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 4 years, तो उसमें काफ़ी हेल्प आउट हुआ मुझे और उसमें मेरी स्किल्स डेवलपमेंट हुई. नॉट दैट कि मेरी राइटिंग स्किल्स हुई, उसके साथ आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं. आप सिंस मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे, तो हम्म. देन इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ आपका एक डिफरेंट फॉर्टे होता है, आप डिफरेंट तरीके से उनसे बात करते हो, तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इस्टेब्लिश होना स्टार्ट होती हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने अपना बीए स्टार्ट किया था, आई वाज टोटली इंट्रोवर्टेड. मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं था. आई वाज नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन कि मैं किसी के साथ बैठ के चिट चैट करूँ या इस तरह की चीज़. तो आई वांटेड टू लाइक गेट आउट ऑफ दैट, क्योंकि एक चीज़ जो मैंने रियलाइज़ कर ली थी अपने लाइक अर्ली ईयर्स में, वो ये थी कि वंस आप लोगों के साथ बैठोगे तभी आपकी एक रेपुटेशन बनेगी, तभी लोगों को पता चलेगा आप क्या कर रहे हो और आप क्या चीज़ कर सकते हो. अगर स्किल्स मेरे अपने पे तक रह जाएंगी तो वो चीज़ ना मुझे बेनिफिट देगी ना सोसाइटी को बेनिफिट देगी. Fair enough. सो दैट्स व्हाई. तो मतलब यू आर सेइंग यस, दैट डूइंग मल्टीपल थिंग्स हेल्प यू टू ग्रो wherever you are यस, right now. ठीक है. यस. Moving back to the thing that you are working right now, it's now you're working in an incubation center, and it's luckily that you're also working in the university, जो university से आपने पढ़ा है, ठीक है. So, just for the people who don't know, tell me what is an incubation center, what sort of job that you are doing over there, and why we need incubation center. Because Okay. a lot of people don't have an idea, don't know about these platforms. कि यार ये ऐसे platforms हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हैं. So tell me about that. Okay. So business incubation center is basically you can say facility जहाँ पे we incubate the startups. Hmm. Startups जो होते हैं वो students के होते हैं. First let me clarify कि startup basically है क्या, या हमारी incubation center की term में what is startup. तो startup is basically any idea जो कि Hmm. किसी problem को tackle करे. इन इंक्यूबेशन सेंटर वी लुक आफ्टर टू थिंग्स, जो कि मेरे जॉब की डिस्क्रिप्शन में भी आता है कि आई एम लुकिंग फॉर टू थिंग्स इन अ स्टार्टअप. फर्स्ट इज द प्रॉब्लम, कि व्हाट इज द प्रॉब्लम जो कि एक स्टार्टअप आइडेंटिफाई उसने की है, एंड देन व्हाट इज द सोल्यूशन दे आर ऑफरिंग.
Based on this criteria, we basically incubate them. We offer them different facilities there. For example, we offer them co-working spaces, we offer them training halls, conference rooms, meeting rooms, mentorships, trainings, जिसके ताकि वो एक इकोसिस्टम में आ जाएं, दे आर इंटीग्रेटेड इन दैट इकोसिस्टम, Mm, जहाँ पे उनकी ग्रोथ हो सके, जहाँ पे वो मेंटोर से मिल सकें, जहाँ वो अपने जैसे ही स्टार्टअप्स के सीईओ से मिल सकें और अपने आइडिया को एक मार्केट में लाइक यू कैन से कि टेंजिबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके लॉन्च कर सकें और mm, यू कैन से कि बिजनेस बना सकें। इंक्यूबेशन सेंटर का, जहाँ जिस तरह मैं एयर यूनिवर्सिटी इंक्यूबेशन सेंटर में काम कर रही हूँ, सो एयर यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का मिशन और विजन बेसिकली इज़ के हम एयर यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स को प्रमोट करते हैं। वी आर लुकिंग फॉर कि एयर यूनिवर्सिटी के ही स्टूडेंट्स इंडस्ट्री के ऐसे प्रॉब्लम्स को टारगेट करें, इंडस्ट्री के ऐसे प्रॉब्लम्स को आगे लेके आएँ और उनके mm. लिए ऐसे सोल्यूशन क्रिएट करें जिसको मार्केट में लॉन्च करके दे कैन क्रिएट देयर ओन बिजनेस। Fair यू enough. नो कि पाकिस्तान में जॉब मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड है। तो वंस यू ग्रेजुएट, फॉर एग्जांपल एक बैच में अगर 10,000 बच्चे ग्रेजुएट हो रहे हैं तो जॉब मार्केट में आपके पास 500 जस्ट सीट्स होंगी। तो 10,000 का 500 के साथ मार्जिन इज़ लाइक वेरी वेरी बिग। तो वो जो बाकी के 9,500 बच्चे होंगे वो कहाँ जाएंगे, वो क्या करेंगे, दे आर लाइक जॉबलेस। तो उन जॉबलेस बच्चों को यू कैन से कि उसकी रेशो कम करने के लिए देर आर इंक्यूबेशन सेंटर्स जहाँ पे वी ऑफर देम डिफरेंट फैसिलिटीज़ और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, जहाँ पे वो आके अपना आइडिया उसको परस्यू कर सकते हैं, उसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं। इफ़ दे नीड एनी गाइडेंस रिगार्डिंग एनीथिंग तो वो हमसे आके पूछ सकते हैं और हम उन्हें असिस्ट कर सकते हैं इसके बारे में। एंड देन आफ्टर अ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ 1 ईयर वो इस काबिल हो चुके होते हैं कि उनका आइडिया मार्केट में लॉन्च हो सके एंड दे आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम इट। सही, तो मतलब बेसिकली इट्स अ वन स्टॉप शॉप फॉर एवरी पर्सन who wants to start something. ठीक है. How was your like what was your core job as a startup support executive? Because a lot of time people think यार ये जो incubation center है it's just giving you the space. Um, um, nothing to be like specifically क्या ही कर रहे होंगे. So tell me about how the overall incubation system works. ठीक है. And what are the, because yes, incubation system is giving spaces, but what are the outcomes an incubation system getting in return for doing those things? ओके, सो फर्स्टली जिस तरह आपने बोला कि वी आर लाइक इंक्यूबेशन सेंटर्स आर गिविंग स्पेसेस। First thing is कि when you have any idea and you are working on it and you are like thinking कि आपने इस idea के ऊपर काम करना है and you are offering a solution, you Hmm. don't have a platform. So incubation centers are basically the platforms जहाँ पे आप आके वहाँ पे incubate हो सकते हैं। वहाँ पे you can thrive and आप अपनी जो problem है उसको solution में convert कर सकते हैं। Hmm. इंक्यूबेशन सेंटर ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो यस वी आर ऑफरिंग द फ्री स्पेस, यस वी आर ऑफरिंग डिफरेंट फैसिलिटीज, बट इट इज़ नॉट इट, लाइक दिस इज़ नॉट इट। इसमें होता ये है कि वंस अ स्टूडेंट एंटर्स इन द इंक्यूबेशन सेंटर वी हैव डिफरेंट प्रोसेसेस। हमारा जो पूरा यू कैन से इन द एयर यूनिवर्सिटी बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर वी हैव 1.5 years ऑफ इंक्यूबेशन। फर्स्ट 1 year में वी प्रिपेयर देम और उस प्रिपरेशन में दे नीड गाइडेंस, दे नीड मेंटोरशिप, तो हम उनको इंडस्ट्री के साथ बेसिकली लिंक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल इफ लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, इफ अ स्टार्टअप, इफ अ स्टूडेंट ऑफ एयर यूनिवर्सिटी, उसके पास एक आइडिया है, उसने कहा कि यार ये मेरा आइडिया है और मैं इस पे बिजनेस बनाना चाहता हूँ। नाउ व्हाट, ठीक है, उसके पास प्रॉब्लम उसने आइडेंटिफाई कर ली, सोल्यूशन उसके पास आ गया। उसके पास कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो बैठ के अपनी टीम बिल्डिंग कर सके, जहाँ पे वो बैठ के पर्टिकुलरली कंसंट्रेट करके वहाँ पे काम कर सके, ठीक है। टीम बिल्डिंग के उसके पास एस्पेक्ट्स नहीं है, वो किस किस तरह से जाके कहाँ से अपनी टीम बिल्ड करेगा, कहाँ से लोग लेके आएगा, किस तरह से लोगों को कन्विंस करेगा कि जो उसका आइडिया है इट इज़ टैंजिबल, उसके ऊपर लोग इन्वेस्ट कर सकें, इन्वेस्टर्स कहाँ से लेके आएगा। सो दिस इज़ बेसिकली होल जो कि इंक्यूबेशन सेंटर में किया जाता है। वंस एक स्टार्टअप वहाँ पे आ जाता है तो देन वी हैव अ पर्टिकुलर करिकुलम, सॉर्ट ऑफ जिस तरह आपका बीएस का करिकुलम होता है इसी तरह हमारा करिकुलम होता है फॉर 6 मंथ। उस 6 मंथ के करिकुलम में वी हैव डिफरेंट केपीआईज फॉर द स्टार्टअप्स जो दे हैव टू मीट, जिसमें वन ऑफ द थिंग्स इज देयर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। इन मोस्ट ऑफ द इंक्यूबेशन सेंटर्स जो कि पाकिस्तान में, आई एम नॉट श्योर अबाउट ऑल ऑफ देम बट मोस्ट ऑफ देम, they are not particularly focusing on particularly on intellectual property। Hmm. मतलब उनका इतना फोकस नहीं होता कि फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप आया, उसने अपना सोल्यूशन बताया, सो दे आर नॉट फोकसिंग ऑन कि उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को सिक्योर किया जाए। इससे पहले कि वो मार्केट में लॉन्च हो और कोई उसका आइडिया चोरी करे, उस चीज़ को सिक्योर किया जाए। वो पर्टिकुलर चीज़ आपको बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर में हम ऑफर करते हैं।
उसमें होता ये है कि आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को पहले सेव किया जाता है, सिक्योर किया जाता है एंड देन वी मार्केट देम। हम्म। उसके अलावा आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है एज अ स्टूडेंट सीईओ। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, फॉर एग्जांपल अ स्टूडेंट ऑफ फोर्थ सेमेस्टर इज हैविंग दिस आइडिया और वो इंक्यूबेट है, तो उसको आइडिया नहीं है कि लीगल टर्म्स क्या होती हैं, किस तरह से लीगैलिटीज फुलफिल की जाती हैं। फॉर एग्जांपल उसने किसी के साथ सीडीए साइन करना है, एनडीए साइन करना है, एमओयू साइन करना है, तो ही वोंट नो कि क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, इक्विटी कितनी देनी होती है एंड ऑल दैट। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं जो कि उसके बिल्कुल नॉलेज नहीं होता। सेम इज़ द केस विद फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स। तो उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं होता स्टूडेंट्स को कि फाइनेंशियल लिटरेसी लाइक क्या है, टर्म्स क्या होती हैं, किस तरह की टर्म्स यूज़ की जाती हैं। एज अ सीईओ आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं अपनी कंपनी में। तो वो इस तरह का नॉलेज बेसिकली नहीं होता स्टार्टअप्स के पास, जो कि एज अ इंक्यूबेशन सेंटर वी ऑफर देम। Fair तो इट्स enough. नॉट जस्ट अबाउट स्पेस, It's not about इट्स just अबाउट it's about all the यस, ethics and everything before you go to any VC round and you want to sell your stuff. Um, यस, अभी आपने जो बताया, जो आप करती हैं, जो इनक्यूबेशन सेंटर करता है, वो बिल्कुल रिलेट नहीं करता जो आप पढ़ती हैं। ठीक है, आपने पढ़ा बिल्कुल अलग है। सो व्हाट एट व्हाट टाइम डू यू बिलीव कि दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू? बिकॉज राइट नाउ व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू योर ओवरऑल एक्सपीरियंस, दिस इज वन ऑफ द वेरी, दिस इज ओनली द थिंग दैट यू आर डूइंग फॉर अ ईयर नाउ, माशाल्लाह। So why choosing this? Because a lot of time when we see people from the field, from the graduation degrees, like education, like English, like psychology, we see people doing, psychologists become psychiatrists, we see people becoming lecturer, we see people becoming writers and doing things for different brands. But why do you think this is the right step? What was the thought process that you think, यार ठीक है यार, ये जॉब करनी चाहिए, that makes sense? Because there should be an ultimate goal. Yes, your graduation is not that stable. आपने सोचा कि ठीक है यार, मुझे किस में करना चाहिए, किस में नहीं करना चाहिए, but at the end of the day, this is what it is. You have done your graduation, you have done your masters, but what was the step when you shifting to any career pathway, when you were designer becoming to a content writer, becoming to a business developer, business development, and then becoming to working for an incubation center? What was जी। the thought process when you were shifting? What was the thought process when you were shifting to different jobs, and what's your ultimate goal? ओके। So when I was doing my freelancing, जिस समय मैंने आपको बताया कि I was doing freelancing for the 5 years. Hmm. तो in 5 years में I have gained different skills. For example, one of the major skills was communication skills. And since I was also doing graphic designing, you can say different like projects जो कि graphic designing से related थे. I was doing presentations and all that. Uh, then I shifted towards okay, freelancing वाला काम मैंने छोड़ दिया once I Hmm. graduated. मैंने उसमें पॉज लिया एंड आई वाज लुकिंग फॉर कि यार अब ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, अब आई Hmm. हैव टू लुक फॉर सम स्टेबल जॉब और एनीथिंग जो कि मुझे अपने घर से बाहर निकाल सके, कि मैं जस्ट स्टक नहीं होना चाह रही, ये ना हो कि बीच में गैप आ जाए। आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली कि मैं अभी एमफिल में जाऊँ। आई वाज लुकिंग फॉर कि मैं जॉब की तरफ जाऊँ एंड ऑल दैट। Hmm. देन उस टाइम फ्रेम के अंदर आई वाज वर्किंग एज आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी कि मैं इंटर्नशिप कर सकूं इन ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन विच इज़ Hmm. ऑरिक। अच्छा, ऑरिक इज़ बेसिकली जहाँ पे मैंने अपनी फ्रीलांसिंग की हर स्किल यूज़ की है। आई वाज बेसिकली देयर यू कैन से प्रोजेक्ट मैनेजर, जहाँ पे मैंने उनको कुछ प्रोजेक्ट्स सॉल्व किए, कुछ प्रोजेक्ट्स उनको करके दिए। बट मीनवाइल आई वाज डूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब्स, I was doing communication, I was linked with faculty members, I was linked with administrative staff and all that. At that point, I did my internship for like 10 months. उस 10 महीने में since Auric is basically linked with BIC incubation center. So for the first 5 months मेरी internship जो है वो Auric में थी and the last 5 months मैंने incubation center में अपनी internship की। Hmm. Once I entered the incubation center, उसकी you can say कि अब जेंजी वाली बात आ जाएगी, but उसकी vibe is like totally different from teaching, from overall university. आप अगर university में जाते हैं तो university is something else and incubation center is something else. वहाँ पे enter करते ही you feel like कि you can do something और आप यहाँ पे लोगों को empower कर सकते हो, you have the authority basically. So then I once मेरी internship खत्म हुई, then I shifted towards incubation center. I got the opportunity कि मैं वहाँ पे job वगैरह कर सकूँ,
एंड जिस तरह मैंने बताया कि आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन सोशल लिंग्विस्टिक्स, सो आई वाज मोर इंटरेस्टेड इन के हाउ माइंड वर्क्स बेसिकली, और डिफरेंट लोगों के साथ किस तरह से आपका लिंकेज बनता है, हाउ कैन यू रिलेट, आप किस तरह से उनसे रिलेट कर सकते हो, किस तरह बातचीत कर सकते हो। और सिंस आई जस्ट ग्रेजुएटेड, मतलब मैंने जब अपनी जॉब स्टार्ट की इन 2024, तो आई ग्रेजुएटेड इन 2023, तो काफ़ी कम टाइम था इसमें। वंस आई गॉट इन इंक्यूबेशन सेंटर, तो यू कैन से कि आई वाज थ्रिल्ड कि मैं स्टार्टअप्स को किस तरह से असिस्ट कर सकती हूँ, सिंस स्टार्टअप्स भी वही स्टूडेंट थे। सो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया कि फ्रॉम माय बीएस टू माय इंटर्नशिप ऑन द होल जर्नी, मेरे पास कोई ऐसा पर्टिकुलर गाइडेंस नहीं थी कि कोई मुझे गाइड कर सके कि ओके व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट, व्हाट यू हैव टू डू नेक्स्ट। एंड जिस तरह मैंने बताया कि आई वाज द एल्डेस्ट इन माय लाइक फैमिली, तो मेरी मुझे कोई बताने वाला नहीं था, कोई गाइड करने वाला नहीं था कि अच्छा नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है, नेक्स्ट स्टेप आपने क्या लेना है। तो इन द इंक्यूबेशन सेंटर और जो जॉब मैं अभी कर रही हूँ उसमें आई फाइंड दिस थिंग थ्रिलिंग कि मैं अगर किसी को असिस्ट कर सकूं, क्योंकि यही सारे स्टूडेंट्स हैं, मैं इसी स्टेट से गुजरी हूँ, तो आई फाइंड दिस लाइक वेरी, यू कैन से, So, मोटिवेटिंग कि you मैं have seen you किसी have seen स्टूडेंट को बता सकती हूँ। you have seen both the sides, तो आपने सोचा कि यार why not to become someone who can help them. ठीक है, moving forward, there are few pointers, there are few myths that I wanted to discuss. Let's see how your thought process in this. Perception on degree and skills. What do you think, yaar? Is it important to do a degree in a specific field if you wanted to start working on this specific thing? या फिर आपकी वाली चीज सही रहती है, just go with the flow and see how it goes. ओके, सिंस मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूँगी तो आई थिंक स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट नाउ डेज। अगर हम देखे जाए तो जॉब मार्केट इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स स्किल बेस्ड। आपसे नहीं पूछा जाता कि व्हाट डिग्री यू हैव मोस्टली। फॉर एग्जांपल इफ एनीवन इज लुकिंग फॉर समवन, तो वो जॉब डिस्क्रिप्शन में आपकी स्किल्स मेंशन करते हैं कि दिस पर्सन मस्ट हैव दीज स्किल्स, लाइक दिस Fair दिस enough. दिस दिस। वहाँ पे आपकी डिग्री मेंशन नहीं की जाती कि यू हैव डन बीएस, यू हैव डन एमफिल। सिंस इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू आई हैव वर्कड विद डिफरेंट पीपल, जिन्होंने यू मतलब यू वोंट बिलीव कि मैं आई रिसेंटली वर्क विद स्पीकर, जिनसे बेसिकली काफ़ी डिस्कशन हुई रिगार्डिंग इंक्यूबेशन सेंटर और ऑल दैट। एंड एट दैट पॉइंट, एट वन पॉइंट ही मेंशन कि उन्होंने अपनी डिग्री भी कंप्लीट नहीं की, लाइक ही हैज़ जस्ट डन हिज एफएससी। एंड उसके बाद लाइक ही इज़ नाउ वर्किंग फॉर इंटरनेशनल एंड मल्टी नेशनल कंपनी, और उनका कोई बीएस की डिग्री नहीं है, कोई एमफिल की डिग्री नहीं है, कोई एजुकेशन की डिग्री नहीं है, एंड ऑल ही हैज़ इज स्किल्स, कि कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी अच्छी हैं, सॉफ्ट स्किल्स उनकी काफ़ी अच्छी हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो जस्ट स्किल्स आर आई थिंक सो इनफ। बट अगर आप पाकिस्तान की बात करें पर्टिकुलरली, तो पाकिस्तान में स्टिल देयर इज़ लाइक दिस थिंग कि आपकी डिग्री भी उसी चीज़ में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इफ समवन इज लुकिंग फॉर अ पर्सन कि वो आके उसकी जॉब करे, तो ये एमफिल और बीएस की काफ़ी चीज़ें होती हैं कि यू हैव डन योर बीएस, इफ़ नॉट तो यू हैव डन योर एमफिल, और आपने किस चीज़ में की है। आप जो जॉब कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं जिस तरह इंक्यूबेशन सेंटर में जॉब कर रही हूँ, तो मुझे भी ओकेजनली ये चीज़ बार बार सुनने को मिलती है कि ओह अच्छा, आपने तो इंग्लिश की थी, व्हाई हैव यू शिफ्टेड टुवर्ड्स बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर। एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि ओके, नाउ आप अगर इंक्यूबेशन सेंटर में आ गई हो, यू हैव लाइक गेन्ड योर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस आपके इंक्यूबेशन सेंटर में हो चुका है, तो व्हाट अबाउट योर डिग्री, आप अपनी डिग्री का क्या करोगी, लाइक आपने 4 साल वेस्ट किए हैं, आपने अपने 2 साल एमफिल के वेस्ट किए हैं, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। So I think it's a like both way you can say, depending on the job market. अगर आप internationally देखते हो तो I think it's more of you can say skill based, but in Pakistan particularly there is still this like particular thing कि you must have done your bachelor's or you must have done your MPhil in particular thing. Fair enough. The next thing that I wanted to discuss is um, what tips and tricks that you wanted to share with people. अगर फॉर एग्जांपल मैं ये देखूं कि लारे आज से 3 साल पहले अगर अपने आप को देखें, तो इफ उनको ये टिप्स या ट्रिक्स या उनको ये गाइडेंस पता होती, ठीक है, तो उनके काम आती। एनी थिंग्स दैट यू वांटेड टू शेयर, बिकॉज yes, we got the point कि there is a very lack of career counseling, because a lot of time not everyone knows कि they what they wanted to know, what they wanted to do, ठीक है। Sometimes you explore something by your own while doing something, ठीक है, बट एनी टिप्स एंड ट्रिक्स, एनी एडवाइस जो आप कहोगे कि यार ये वो चीज़ें जो अगर आपको पहले पता होती तो आपके काम आती हैं, अगर ये आप लोगों को पता होगी तो लोगों के काम आ सकती हैं।
One thing जो कि I would say for sure is leave your comfort zone. जो चीज़ मुझे काफ़ी लाइक if I look back 3 years back or 5 years back, तो one thing जो कि मेरे लिए काफ़ी hindrance थी और I think काफ़ी लोगों के लिए hindrance होती है is like leaving their comfort zone. Mm, आप एक जगह फॉर एग्जांपल यू हैव सिक्योर्ड अ जॉब, आपने जॉब मार्केट में आप एंटर हो गए, आपने जॉब सिक्योर कर ली एंड यू आर लाइक स्टिक टू इट। आपने 5 साल 6 साल 10 साल वहीं पे गुजार दिए और आपकी कोई कैरियर ग्रोथ नहीं हो रही, आपकी कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। सेम इज़ द केस विद स्टूडेंट्स, सेम इज़ द केस विद एवरीवन। कि कंफर्ट जोन जब तक आप नहीं छोड़ेंगे यू कांट ग्रो। ठीक है, जो mm, कि चीज़ मेरे लिए भी काफ़ी इफ़ेक्टिव थी। वंस आई स्टेप्ड आउट ऑफ माय कंफर्ट ज़ोन, जब मैंने एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया, जब आई लाइक एनकाउंटर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट लोगों के साथ बैठ के मैंने बातचीत की, देन आई गॉट टू नो कि अच्छा जो चीज़ मैं कर रही थी अपने माइंड में, जो चीज़ एक मैंने बनाई थी, एक लाइक फसाड बनाया हुआ था, इज़ लाइक डिफरेंट। और जो एक रियलिटी है, जो लोगों ने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, उनके साथ बातचीत करके आपको पता चलता है कि ओके दिस इज़ डिफरेंट, और जो मेरे माइंड में चल रहा था कि वो डिफरेंट चीज़ है। fair enough. सो लीव योर The last thing that I wanted to discuss is about, as being a Gen Z, TK, what do you think LinkedIn as a platform? Because nowadays I have conversation with a lot of people, and we see that now there is a term called linkedgram, or LinkedIn people are using as an Instagram. Okay, do you think LinkedIn is a platform that can help you? Because now you are working for a startup, and you know कि connection building बहुत ज़रूरी है when you wanted to sell anything, when you want to do anything, because a lot of time you learn a lot of good things because you are connecting with people who are much better than you. ठीक है, it's not about only selling, it's also to understand कि यार industry में हो क्या रहा है. Because for example, if I want to sell a mouse and I don't know okay, what are the competitor in the markets and how to do that, because it's not only about dealing with the competitor, it's about learning different things and technologies किस तरीके से आ रही, connection building किस तरीके से आ रही है, लोग किस तरीके से connect कर रहे हैं. Till the date, LinkedIn is a very good platform for that. So what do you think, what's the important role of LinkedIn, specifically being as a Gen Z? Or what do you think, what's the right uh, आइडिएशन, या क्या तरीका जो आपको लगता है कि लिंक्डइन ने मेरी लाइफ में ये चीज़ें चेंज करी है, लोगों को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? एंड दिस इज द लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस. So as far as myself is concerned, तो LinkedIn is something, is a platform जहाँ पे you must have your profile. आपको जिस तरह आपने बात की कि आपकी networking, आपके connections, they are like very important. Particularly in this era, आपकी आप जिस तरह for example, if I'm talking to you, so it's basically through LinkedIn. I got to know different people. I have different connections. I have different linkages. It's basically through LinkedIn. लिंक्डइन पे ओके, सो जेंजी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो दे आर लाइक मोर फोकस्ड ऑन इंस्टाग्राम, दे आर लाइक फोकस्ड ऑन टिकटॉक। नो डाउट कि इंस्टाग्राम से टिकटॉक से यू हैव रीच, आप डिफरेंट लोगों को रीच आउट कर सकते हो, आप ऑडियंस को रीच आउट कर सकते हो। बट फॉर द प्रोफेशनल्स, इफ़ यू आर लिंकिंग, इफ़ यू आर थिंकिंग कि आप अपनी नेटवर्किंग जो है प्रोफेशनल्स के साथ बिल्ड ऑन करो, तो देन यू हैव टू बी ऑन लिंक्डइन। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू एग्जाम्पल ऑफ माई सेल्फ, तो 1 year बैक आई वॉज नॉट एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग ऑन लिंक्डइन। ठीक है, लिंक्डइन आई थॉट के लिंक्डइन बस इज लाइक शो केस। ठीक है, आप जस्ट अपनी प्रोफाइल बनाते हो, यू जस्ट शो केस के ओके यू हैव डन दिस सर्टिफिकेशन, दिस 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 दिस, एंड एवरीवन इज विनिंग इन द लाइफ। और जब आप लिंक्डइन खोलते हो तो यू गॉट डिप्रेस कि ओह पता नहीं लोगों ने क्या कर लिया और मैंने अभी तक कुछ नहीं किया। सो ये फीलिंग आती है वंस यू आर नॉट लाइक इन्वॉल्व इन लिंक्डइन। बट आफ्टर गेटिंग इनटू जो माई जॉब, और जब मेरी जॉब हुई इंक्यूबेशन सेंटर की, तो वन थिंग आई रियलाइज इज नेटवर्किंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी अगर नेटवर्किंग नहीं है, पीपल वॉन्ट बी नोइंग कि आप क्या काम कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट इज़ योर जॉब, आपकी स्किल्स क्या हैं, आप क्या चीज़ सिखा सकते हो किसी को, आप आपसे लोग क्या चीज़ सीख सकते हैं, किसी को कुछ आइडिया नहीं है। और वन थिंग इज़ कि लिंक्डइन अभी भी पाकिस्तान, सिंस मैं पाकिस्तान की बात करूँगी, पाकिस्तान में लिंक्डइन इज़ स्टिल वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे प्रोफेशनल्स जो हैं आपसे लिंकेजेस क्रिएट करते हैं। ऑन लिंक्डइन फॉर एग्जांपल, इफ समवन हैज़ 25K फॉलोअर्स एंड यू हैव 1000K फॉलोअर्स, सो ही वोंट बी हेजिटेटिंग कि यार मैं आपके साथ लिंक नहीं कर सकता या मैं आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज दे आर लुकिंग फॉर कनेक्शन बिल्डिंग एंड यू आर ऑल्सो लुकिंग फॉर कनेक्शन बिल्डिंग। सो आई थिंक दिस इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे प्रोफेशनली यू कैन ग्रो बेटर। Fair enough. I think we have discussed a lot of good pointers, Larib. Thank you so much for your time. Because a lot of time people usually think that Gen Zs are doing this or that, but we need to understand that every person is different from
another one, and every person is doing something because uski backstory kya hai. So thank you so much, Lariat, for your time. It's a pleasure to have you on the session. Thank you so much. Thank you so much for having me.